नमस्कार सभी वरिष्ठ जनों को, मेरा सादर अभिवादन, क्योंकि मित्र मौजूद है, मैं आपको भी नमन करता हूँ। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर 8 से 9 साल का मेरे को उसका एक स्टूडेंट होने का अनुभव रहा है, और वो जो अनुभव मेरा रहा है उसके मैं आज यहाँ पे कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। और चूंकि मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ तो वर्ल्ड की समझ हमें खाली बाइनरी में है, 0 और 1 सही या गलत होगा या नहीं होगा। जो ग्रे शेड्स है डिप्लोमेसी के, ट्रेड के, वो हमें शायद कम समझ में आते हैं। तो जो मेरे विचार हैं मैं उसको बड़े सीमित दायरे के अंदर, सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे के अंदर, साइबर सुरक्षा के दायरे के अंदर उसको सीमित रखूंगा। Yeah, there are people who are requesting you to speak in English. I can, but I thought since it is some gathering, you should speak in your national language. But I'll try and mix wherever I think message and messaging has to be for the international audience. I'll try and put that in English. Yeah, certain things. Yeah, so certain things we think we should be spoken in Hindi for domestic audience. We'll try and speak in Hindi. I'll mix both. So first thing, if you look at the world in the last 120 years, the way I see is that during 1900 to 1940s, during the course of First and Second World War, we were in an age that countries formed alliances based on the military power, and whichever had the more capable military power, they occupied territories, they went on conquest, and they captured the world. And then came an age post Second World War, when this new world order was set up, that especially between 1960s and probably up to 1990s, we were living in an era which is called the economic age, where whichever countries and economies had the bigger economic power, they started capturing the world, because whoever had money, it could either rent a military or get into a sort of a military treaty. Like for example, US and Japan. Japan paid for sort of US patronage, or you look at the NATO alliances, where European countries pay to NATO and US sort of protects them. So if you didn't have a big army, you had a lot of money, you could pay oil and buy or rent the military of other third countries. So that is how probably world was capturing. There was end of monopolistic rules of Britain and UK, and then came the money power. China became the new power, Russia became the new power, and then post sort of 2008-9. There came a landslide change that who holds the power in the world. Whichever country held more amount of information, more amount of intelligence, a bigger reach in technology sort of started becoming the world power. Also, a small pie of that world power started shifting into the hand of non-state actors, individuals. If you look at what Julian Assange did by leaking all the diplomatic cables and military communications of US, it shook the world. It told the world, look how US and UK collaborated to fix Iraq when there were no weapons of mass destruction, how they did everything, how US forces were hiding sort of extrajudicial killings in Afghanistan. Everything was revealed, and US diplomacy sort of came to a standstill. They realized that this is an age where one single man can take down empires and countries. And while they were, recovering from that shock, there came another big blow in terms of Edward Snowden, who revealed everything, that how US and his 5 countries use technology to spy upon every country in the world. And it's not about friends and foes, it's not about alliances and other alliances or axis or even. It was about, they said that we will spy on each and every one, excluding our own judges and citizens. They snoop upon every meeting on G7, they snoop upon their friendly allies like Germany and Angela Merkel on the terms of monitoring terrorism. Now definitely Angela Merkel, the Chancellor of Germany, was not a terrorist. They snooped upon Manmohan Singh in G7 meeting. I'm sure Manmohan Singh Sahab is, forget about terrorist, not even extremist in any sense. So, and when Snowden revealed all those things, that how US had the capability to switch on any phone in the world at any given time, because majority of the phones are manufactured by American companies, and even those which are manufactured by Chinese companies, operating systems of those mobile phones, be it iOS or Android mobile phones, what we are using. I mean, for an example, if you were to raise at 99%, all of us are using mobile phones which are manufactured in China. 99% of all of us are using operating systems on those mobile phones like Android by Google or iOS by America. There is no escape. छोटा ले आए, बड़ा ले आए, महंगा सस्ता
you own the software or the embedded code of any device in the world, you technically owns the device. And then also along with this, we are seeing tremendous growth in the connectivity. In India, for example, out of 120 crore phones we are using, 400 million phones are smartphones, 40 crore phones are smartphones. And then we have got the cheapest data rate in the world. So we have become sitting ducks of this sort of espionages that you could steal data at a very high rate. So in those circumstances, what Snowden revealed, it again proved that how one guy like Edward Snowden who ran away from US could expose the entire country is working. And they are still capturing from that shock. And there were certain things like, the cancellation of $40 million deal by Brazil, who wanted to buy F-16. They said, no, sorry, you are snooping on us, we are not buying. The deteriorating relations between European Union and America, the countless number of lawsuits, court cases, class action suits against American companies, propaganda by agencies like FBI and CIA that we are unable to lock the phone of a terrorist, we don't have cold order. Bullshit crap. आपको वो बोलता है आपको हर फोन का हर डेटा बिट बाय बिट अपनी एजेंसीज के पास लेके आ रहे हैं और हमको बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया जाता है we cannot unlock the phone. It is because तब अगर आप ये ना बोल दें कि यूएस इंडिया इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर से आप थोड़ा सा हफीज सईद का भी कुछ अगर डेटा मिल जाता तो हम भी अपनी कोड के अंदर प्रोड्यूस कर देते, तब आपको समझाया जाता है नो ये व्हाट्सएप के चैट्स आपको नहीं मिल सकते, ये तो इंक्रिप्टेड है. आपको बताया जाता है कि सॉरी सर दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल. और जब आप जो टेक्निकल आदमी जब आपको खड़ा होकर पूछता है कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं कि आप करना नहीं चाहते, तो जवाब आता है देखिए प्रैक्टिकली संभव नहीं है. बात में समझने का फर्क है कि संभव तो है पर हम करेंगे नहीं, और खासतौर से आपके लिए नहीं करेंगे. और ये भी इस बात की गारंटी है कि कम से कम हमारे लोगों के लिए तो हम कर रहे हैं. इसी पूरे खेल के अंदर जब प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं कि हम डेटा सेंटर यहाँ लेके आए, डेटा लोकलाइजेशन हम यहाँ पर करें, तो ये कंपनियां आपके विरोध में खड़ी होती हैं. और पैसे का बोलबाला इतना है हिंदुस्तान के अंदर, आपके वो बच्चे जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने आपको खाना खिलाया, नास्कॉम और DSCI, ये भी खड़ा होकर उनकी भाषा बोलते हैं कि साफ साफ ये सही कह रहे हैं, यहाँ पे डेटा नहीं होना चाहिए, बहुत महंगा होगा. क्यों? क्योंकि 80% फंडिंग इन अमेरिकन कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल इनसे आ रही है, 50% उनकी पदाधिकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं. तो ये जो बड़ा रियाल है जहां इंफॉर्मेशन इज नाउ द न्यू डोमिनेंट पावर, वहां पे जब हम एक ऐसे राष्ट्र समूह की परिकल्पना करते हैं जो हिमालय हिंद महासागर का होगा, तो उसमें करीबन हम 53 कंट्रीज की बात कर रहे हैं. पावर की करनी चाहिए. एक तो बेसिकली कंट्री नहीं, एक आर्मी का रोल स्टेट एक कैंप है टेररिस्ट पैदा करने का, ये भी एक सच है. तो ये कहा जाता है कि एवरी कंट्री हैज अ आर्मी, बट पाकिस्तान इज एक्सेप्शन वेयर आर्मी हैज अ कंट्री which is used like a factory of mainstreaming terrorism in the world. So ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि कोई हम हिंदुस्तानी होने का ज्यादा भूल पीट के पाकिस्तान को नीचा दिखाई, इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी जो राष्ट्र समूह बने हैं, चाहे वो सार्क हो, चाहे बड़ा एक तरह से आप आसियान प्लस का ग्रुप उठा लें, या बिम्स्टेक हो. बिम्स्टेक की सफलता का यही कारण था, वहां ऐसी कोई फेल होती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है जो टेररिज्म को मेनस्ट्रीम करती हो. सार्क के फेल होने का कारण इनका होना है. तो जब हम ऐसे राष्ट्र समूहों की कल्पना करें तो हमें ये तो जरूर देखना है कि हम इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, पर ये भी जरूर सोचना चाहिए कि इनके साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो पहली बार एक अच्छी हकीकत को देखा जाए तो जब आप इन 53 समूहों की बात कर रहे हैं, तो इनमें विश्व की 4 सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और विश्व में सबसे बड़ी 15 गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं. तो एक बैलेंसिंग आउट फैक्टर भी होना चाहिए. तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैंने आपको बात करी, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था कि आप अगर देखेंगे तो उसको जो है हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम गुलाम थे. दूसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान भी हम एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेस में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं, और जो भी हमारा एक योगदान उसके अंदर हुआ उसका पूरा का पूरा मुनाफा ब्रिटेन को हुआ. तीसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ये IT का आया, कहीं ना कहीं हमने उसका एक बेनिफिट हमें मिला. हमारी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर सुपर पावर इकोनॉमी खड़ी हुई, आज वर्ल्ड विश्व में हमारा नाम है, और जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबेरों के देश थे, आज हमें सॉफ्टवेयर वाला देश बना दिया. ये योगदान हमारा रहा है. मगर जब आप चूंकि हिमालय की बात है, किसी चोटी के ऊपर पढ़े तो जब तक चोटी के शीर्ष पे ना पहुंचे नीचे झुक के नहीं देखना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने का हमें देखना है. और मैं इसलिए कह रहा हूं जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो बिग डेटा का टेक्नोलॉजी का आएगा, वी आर एट द डॉन ऑफ डिजिटल एज. हमें इंश्योर करना है कि उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसका एक तरह से पूरा का पूरा जो एक सबसे बड़ा
उसका जो यहाँ पे इनोवेशन होगी वो हिंदुस्तान के अंदर हो, हम उसके भागीदार बने, हम उसके दर्शक ना हो। तो उसकी एक सबसे बड़ी हमें परिकल्पना करनी है। अब उसके अंदर आते हैं कि ये जो विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पर विश्व की ऑलरेडी जो सबसे बड़ी उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर आप नए 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों को आप जनधन योजना से जोड़ रहे हैं, 40 करोड़ मोबाइल फोन्स की आप बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आधार इनेबल्ड सब्सिडी स्कीम की हम, या डिजिटल ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी इस समय हिंदुस्तान बन चुका है, और ये पूरा का पूरा इंडिजीनियस मैकेनिज्म से बना है। तो ये जो आज हमारे पास एक तरह से मार्केट के साथ साथ बैंकिंग चैनल का जो हमारे पास एडवांटेज है, और बाकियों को अगर आप देखें, चाहे पाकिस्तान और अफ्रीका और चाइना को छोड़कर, बहुत बड़े अमाउंट के अंदर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए वो बैंक रॉबरीज थी, और ये बैंक रॉबरी बैंक तोड़ के नहीं हुई, ऑनलाइन पैसा चुरा के हुई। श्रीलंका से करीबन $16 बिलियन चुरा के, बांग्लादेश से 20 बिलियन गए, हमारे यहाँ से भी काफी कुछ गया। तो और इन राष्ट्रों के पास कैपेबिलिटी नहीं है इस तरह की चीजों को समझने की, चीजों से निपटने की। पैसा नॉर्थ कोरिया में गया, किसी यूएस के कैसीनो में चले गया। तो एक इमीडिएट जो हमारे पास जो है कि जब आप एक बड़ा समूह बनाते हैं तो पहले देने के लिए कुछ होना चाहिए। अतिथि को अगर दिल जीतना है तो पहले खाना खिलाने के लिए कुछ होना चाहिए। तो अगर हम एक सेक्टोरल सर्ट की स्थापना करें, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इन 53 देशों के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाली सर्ट अगर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अगर किसी देशों के अंदर है तो वो इस समय भारत, थाईलैंड और मलेशिया के अंदर है। सबसे बड़ी तीनों सर्ट, और उसमें से हम सबसे बड़े हैं। तो ये क्यों ना हम इस राष्ट्र समूह को कहें कि ये हमारी जो कैपेबिलिटी है अपने यहाँ रेप्लिकेट करें, हमसे सीखें, या हम आपको इसके अंदर योगदान दें। तो आपकी जो साइबर सुरक्षा के अंदर है वो भारत आपके लिए एक मित्र की, एक भाई की एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए समूह के अंदर तैयार खड़ा है। ये पहली बात। दूसरी बात हमें ये देखना है कि अब चूंकि सारे खतरे हम एक तरह से बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, बैंकिंग फ्रॉड्स की, डिजिटल इकोनॉमी की या साइबर सिक्योरिटी की, तो ये जो इंटरनेट से जुड़ी बातें हैं, इंटरनेट को चलाता कौन है? पिछले 25 सालों से अमेरिका का इसके ऊपर एकाधिपत्य रहा, चलाने वाले बनाने वाले सब कुछ वो थे। स्नोडेन के जब रेगुलेशंस हुए तो ये सबको समझ में आया कि सारी कंपनियां जो आज विश्व की सबसे बड़ी एक तरह से देश बन चुके हैं, फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये एक तरह से फ्रंट एंड कंपनीज बन गई एक इलेक्ट्रॉनिक एस्पियोनाज के लिए यूएस की। You know, all these companies behind cheap gadgetry of here and there, they were all the front companies of collecting information, you know, for America, and they were processing it. That is why आप देखेंगे तो विश्व में चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, फौजों का जो साइज है वो घटता जा रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है, बॉम्बिंग के लिए पायलट नहीं जाते। आज हिंदुस्तान के अंदर बात करी जा रही है कि अगर हमारे पास 12 स्क्वाड्रन का या कम से कम 300 जहाजों का जो डेफिसिट है और अर्थव्यवस्था में इतना पैसा नहीं हम एक साथ खरीद सकें, तो शायद अगले 10 साल के अंदर हम ये जरूर कर सकते हैं जो विंगमैन एयरक्राफ्ट है जो आप साथ में उड़ाते हैं, वो एक ऑटोमेटेड ड्रोन हो जो ऑटोमेटिकली आपको डिफेंड करे। तो जो सहयोगी आपको चाहिए एक तरह से, जो आपको इन्फॉर्मेशन फ्लाई कर रही है, उसमें अगर 50% ऑटोमेटेड ड्रोन्स होंगे तो कम पैसे में काम हो सकता है। तो ये जो इरा आएगा इस इंटरनेट गवर्नेंस के जमाने में, इनका एकाधिपत्य था। स्नोडेन ने के बाद लोगों को समझ में आ गया ये बड़ी कंपनियां यूएस का फ्रंट है, अगर ये चलता रहा तो एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी हमने 150-200 साल करी, अगले 500 साल हम इनकी गुलामी करेंगे, सबको समझ में आया। तो इस अधिपत्य को चुनौती दी गई, चुनौती यूरोप से भी आई, चुनौती लैटिन अमेरिका से भी आई, और हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं अपने विकल्प तलाश रहा। तो अमेरिका को भी समझ में आया कि अब चुनौती अगर 3 जगह से आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ इनको भी देना पड़ेगा। तो अब ये तय हुआ कि इंटरनेट गवर्नेंस कुछ देश के कुछ प्रोफेशनल और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाएंगे, रहेंगे हमारे यहाँ। दूसरा विकल्प आपके सामने दिया गया जो चाइना कहता है कि हम सारे देश मिलकर चलाएंगे और हम तय करेंगे क्या नहीं करना है। तो इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान भी तय करेगा, फिर चाइना भी तय करेगा किस तरह का इंटरनेट बने। तो वो व्यवस्था भी हमें कबूल नहीं है। हमारा अपना एक व्यू है कि तटस्थ व्यू, जहां एक टेररिज्म को इंटरनेट के ऊपर रोका जाए, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए, क्राइम को रोका जाए, और सबकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को भागीदारी हो। ऐसा नहीं हो कि आपके यहाँ आतंकवाद 24 घंटे के अंदर आप टेररिस्ट को पकड़ के कोर्ट में खड़ा कर दें और हमारे यहाँ अगर हाफिज सईद की या लश्कर तैयबा की इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो 6-6 महीने आप हमें घुमाते रहे और ये कहा जाए कि ये है नहीं, ये कल आएगा, ये कागज भेजिए, वो कागज भेजिए। तो ये इससे लड़ने की ताकत ये कि हम भी उसका एक, हमारी भी उसके अंदर हो, एक सेव हो।
Despite of India being the largest telecom importing $92 billion economy in the world, we do not have a same internet governance. उसका रीजन ये है कि हमारी एक तरह से जिस तरह से हमको न्यूक्लियर से बाहर रखा गया, यूएनएससी से हम बाहर आए, हमें यहाँ पे भी अंदर आने से रोका जा रहा है। उसका विकल्प क्या है? ये जो 53 देशों की बात कर रहे हैं, अगर इनकी टेलीकॉम अर्थव्यवस्था का साइज आप आएंगे तो $250 बिलियन पूरे वर्ल्ड का 80% आप एक तरह से इम्पोर्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और ये 53 में से 53 देश एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के कोई भी इस समय ये इंटरनेट गवर्नेंस के एक तरह से ब्लॉक को या उसको चुनौती देने की स्थिति में नहीं है इकलौता। पर अगर हम 53 के 53 साथ खड़े हो जाएं तो आप विश्व के 35% देशों की बात कर रहे हैं जो आपको चुनौती देने को तैयार है, 80% टेलीकॉम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो एक हमें ये होना चाहिए, जो लो हैंगिंग फ्रूट है कि कम से कम 53 में से 30-40 देश हमें ग्रुप बना के इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर अपना कॉमन व्यू पॉइंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेवलपिंग इकोनॉमीज, हम इसके बारे में बात करें। तीसरा, कल मैं सुन रहा था यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी गई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करी गई। एक सबसे बड़ी चीज जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारी उसके अंदर अपनी एक इमोशनल गुस्सा तो हमारे अंदर है ही है, बिकॉज वो गुलाम कश्मीर के अंदर से निकलता है, हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा, और हम उसको इलीगल मानते हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि वो जो लैंड कॉरिडोर ग्वादार तक बनाया गया है वो खाली सड़क नहीं है, उसके पास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रही हैं वो खाली सिटीज नहीं है, वो बेसिकली हमारे आने वाले कल के अंदर दिल में किया जाने वाले एक सुराख है, क्योंकि सड़क के साथ साथ एक ऑप्टिक फाइबर केबल भी बिछाई जा रही है। इन्हें पता है कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए डेटा रिवॉल्यूशन, जो ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन करेगा, जो ज्यादा एक तरह से उनका डेटा, हम लोग आज भी अंडर सी केबल से जा रहे हैं। अगर आपको आज आप इंटरनेट चलाते हैं और चेन्नई के अंदर अंडर सी केबल कट जाए तो हम खड़े हैं, एक तरह से 50% स्पीड खत्म होती है, दूसरा सिंगापुर की तरफ जा रहा है। मगर अगर ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर चाइना और पाकिस्तान के अंदर एक तरह से ऑप्टिक फाइबर कॉरिडोर है जहां से वो उसको कहीं ना कहीं बांग्लादेश और नेपाल को भी लेटर कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ्यूचर को चुनौती है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जहां जहां हमारे एक तरह से लैंड बॉर्डर्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, इनके आने से पहले हम वहां पे ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाएं, रीजनल कनेक्टिविटी की, हम सड़क के साथ साथ डेटा की भी बात करें, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, जो आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक किसी भी समाज के अंदर कुछ ना कुछ अराजक तत्व होते हैं। जब हम एक मोहल्ले के अंदर भी सभी लोगों को आने की बात करते हैं तो कुछ लोगों को उठा के जेल में भी डालते हैं ताकि इन सबकी एकता बरकरार रहे। अगर आप लार्जर पूल की बात करें, साल के अंदर बात करें, एक आध आदमी को थोड़ा सा सामदाम दंडभेद के साथ नीचा भी दिखाया जाता है पाकिस्तान का। तो ये जो 53 देशों की अर्थव्यवस्था बनेगी, आप में एक ये भी हमें देखना पड़ेगा, इनके ऊपर सबके ऊपर सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है। 53 में से मैं कल देख रहा था 36 देश ऐसे हैं जो या तो चाइना के डेब्ट ट्रैप के अंदर है, जहां सस्ती लोन देके उनकी इकोनॉमिक्स को बर्बाद किया जा रहा है, और बाकी कम से कम 8-9 मुल्क ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट लैंड डिस्प्यूट है, सॉवरेनिटी डिस्प्यूट है, ओशियन का रीजन का डिस्प्यूट है। 7 ऐसे हैं जो चाइना से एक तरह से अरेंजमेंट तो आए हैं, मजबूरी के अंदर आए, क्योंकि लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान हुआ या लाओस की बात करें। तो 36 देशों को जिस देश से खतरा हो, और आपका जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी, सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क का चाइना के रूप में आपके सामने खड़ा हो, तो हमारे लिए भी ये मौका है कि इनकी ये जो फ्रंट कंपनीज है, हुआवी, ZTE, जो एक तरह से एस्पिनाज कंपनी सस्ता सामान बेचकर आपको एक तरह से स्मूथ करने की, आपके ऊपर जासूसी करने की जो स्कीम चल रही है, इसको रोकने के लिए हम 20-50 देश एक साथ इकट्ठे खड़े और कहा जाए कि जितना भी टेलीकॉम इंपोर्ट चाइना से होगा, हम सारे मिलकर पैसा लगा के लैब लगाएंगे, इसको टेस्ट किया जाएगा, और अगर इसे बैन करने की भी जरूरत पड़े तो बैन किया जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर, इस एज के अंदर जहां विश्व की सबसे बड़े 5 लोकतंत्र हुआवी, ZTE जैसी कंपनियों को बैन कर रहे हैं सिविलियन सेक्टर में, मिलिट्री के सेक्टर के अंदर, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा लोकतंत्र है जहां इनके लिए लाल कार्पेट बिछाया जा रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे कौन से गद्दार बैठे हैं जिनको ये लगता है कि चाइना दुश्मन नहीं, इनको यहाँ पर बुलाकर मेक इन इंडिया करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि वही मेंटालिटी है जो कहीं ना कहीं कल ये भी बोलेगी कि ISI को भी बुलाइए, यहाँ पर टेररिस्ट भी बनवाइए, बम भी बनवाइए, ये भी मेक इन इंडिया होगा। क्या आप ऐसे मेक इन इंडिया चाहते हैं? नहीं। तो बहुत जरूरी है कि हम सारे लोग मिलकर जो एक तरह से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो रिवोल्यूशन चल रहा है, उसके अंदर जो खतरा हमारे सामने खड़ा है, जो उसको इंटीग्रेट करने की जो एक चाइना की तरफ से जो बहुत बड़ी कोशिश आ रही है, उसको रोका जाए। ये
आज होता है, नेताओं ने एक पॉलिसी बनाया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, पर उसके गार के अंदर अगर कोई ऐसी बाबूडूम, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिस देश के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहता हो कि ये 7 कंपनियां भारत के अंदर जासूसी कर रही है, खतरा है, उसी देश के अंदर उसी सरकार का दूसरा मंत्रालय कहता है इनको तो हम 300 करोड़ रुपए का बेनिफिट देंगे, जमीन देंगे, यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने वाली ये कौन सी साइकोलॉजी जो 50 साल से एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी चली जा रही है, जो ब्रेन वॉश ब्यूरोक्रेसी का हुआ है, ये कौन लोग हैं जो ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले पॉलिसी है कि जो भी गवर्नमेंट का सेंसिटिव डेटा होगा उसको लोकलाइज किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि अगर व्हाट्सएप के पास कोई पेमेंट डेटा है, दैट शुड बी लोकलाइज विद इन इंडिया। व्हाट्सएप आज उसको अपोज कर रहा है। इसी सरकार के 3 साल पहले एक और पॉलिसी आती जिसमें कहा जाता है कि 17 अमेरिकन कंपनियां भारत सरकार का सेंसिटिव डेटा रख सकती हैं, क्लाउड पॉलिसी। तो ये अब दिमाग कैसे बदल गया? अगर अब आपको गलती का एहसास हुआ, आपने उसको सुधारा है, तो पिछली बार किस महान व्यक्ति ने आपको ऐसा ज्ञान दिया कि वो गलती हुई, वो कौन लोग थे, उन्हें पकड़ के घसीट कर वापस लेके आना चाहिए। अधिकतर ऐसे हैं जो आज उन्हीं कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। तो लेखा जोखा अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि एक व्यक्ति वो है जिसने हमारा आज बर्बाद किया, करप्शन, भ्रष्टाचार, दूसरा व्यक्ति वो है जो आने वाली पीढ़ियों का भी कल बर्बाद कर रहा है। इनसे भी हमें निपटना है। तो एक जो मेरा बार-बार है कि हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। जो साइबर सुरक्षा के बारे में मैं बार-बार कहता आया हूँ कि पूरे विश्व के अंदर, इन 53 देशों के अंदर एक ऐसा संगठन नहीं है जिसकी 50,000 शाखाएं लगती हो, जिसमें 20 लाख लोग हर सुबह एक जगह इकट्ठे खड़े होकर अपने राष्ट्र के निर्माण की एक नीति निर्धारण की भूमिका के अंदर योगदान देने के लिए रोज विचार विमर्श करते हैं। तो ये 20 लाख लोग, 50,000 शाखाएं जो रोज सुबह आपके साथ राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रही हैं, इसका एक तरह से हम इसकी जो एक प्रचंड शक्ति है, उसमें आने वाले 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भारत के निर्माण के लिए उस प्रचंड शक्ति के उपयोग का करना भी हमारा एक कर्तव्य है। कई बार कई संगठनों ने कहा कि संघ की जो इतनी प्रचंड शक्ति है, हम कभी उसका राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, नेता के लिए निर्माण नहीं होगा, किसी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मगर अगर देश हित में कहीं पर जरूरत पड़ी तो उस प्रचंड शक्ति का प्रचंड तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो जो जमाना था जहाँ एक जमाने में आपने ये बोला कि चीन से जब हमारा युद्ध हुआ, हमारे सैनिकों को हमने खाना खाने से पहले टेस्ट करके देखा कि कोई जहर ना मिला दे। आज समय वो आ गया है कि जितना डेटा सेंटर हमारे यहाँ पे, जितने टेलीकॉम के इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, जो एक स्नूपी का एक तरह से बड़ा सस्ता सामान बेचकर आपको जहर पिलाया जा रहा है, उसको उस जहर को भी टेस्ट करने से पहले हम संग देखें। और उसका मतलब ये है कि वो लोग जो नीतियों को निर्धारण करने के लिए बैठे हैं, उनकी राष्ट्र के प्रति क्या भूमिका है, क्या सोच है, क्या जो निर्णायक भूमिका के अंदर है, वो किस तरफ उनका झुकाव है, वहां जाने से पहले उनको देखा जाए। राष्ट्र के अंदर उस जहर में पहले चखा जाए कि आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना कर दे। इतना ही कहने के साथ मैं आप सबका लिए यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि पिछली बार भैया जी जोशी ने कहा था कि भाषण छोटे होने चाहिए, चिंतन बड़ा होना चाहिए। बाकी समय आपके चिंतन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।